Hey everyone, namaste. Welcome to Trading Trade Video Analysis. I know that you people must be thinking कि इतने दिन हो गए कोई videos नहीं आए निफ्टी के and कोई भी stock analysis हमने post नहीं की just because of the technical reasons. But now I think all the reasons have been solved. So now I will try my best to be regular on YouTube. So guys, please do not miss any of our videos where you can learn and earn along with a very nice concept which is connecting the dots, which you all know. This is my concept and I believe in this concept so much that I am damn sure if you learn this concept then you are going to earn a very safe returns and regular returns. That is most important. So चलिए आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं एंड आज हम फिर से एक कॉमन टॉपिक लेने वाले हैं, कॉमन इंडेक्स लेने वाले हैं, दैट इज निफ्टी. एंड एज यू ऑल नो, एक्चुअली जब से मैंने ट्विटर पे अपडेट करना शुरू करा है कि 15,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी का. एंड एज यू ऑल नो कि वहीं से निफ्टी एक रेजिस्टेंस निफ्टी ने वहां पे लिया, उसके बाद वो कंसोलिडेशन से नेगेटिव फेज में है. बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेगेटिव फेज कंटिन्यू रहेगा या कंसोलिडेशन फेज और चलेगा. तो इसी का आंसर जानने के लिए आज हम लोग एक छोटी सी एनालिसिस देखेंगे जिसपे आप लोग को लर्निंग प्रोसेस से बहुत है. शायद अर्निंग प्रोसेस से ये वाला वीडियो ना मिले लेकिन लर्निंग प्रोसेस से बहुत है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, let's go on the chart and understand. So guys, the chart which you can see on the screen is of Nifty monthly time frame chart. कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है, कनेक्टिंग डॉट्स. रिमेंबर, सो ऑन मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, इफ यू कैन सी हियर गाइस, if you can see these candles, right, we all can say that every time Nifty is not breaching its monthly lows except this candle. If we leave this candle, then every time Nifty has not breached the previous candle low. So one concept is very clear that previous month candle low is very important here. So what is the previous month candle low? We all can see that previous month candle low is somewhere around 14,250, right? 14,250. This low you have to actually note down somewhere. But again with this you have to check one more thing, and that is that previous candle is a very indecisive candle. Previous candle is a indecisive candle, and as you know, आप लोग ने टेक्निकल लैंग्वेज में सुना होगा कि indecisive candle we can call it like doji, right? अगर ये indecisive candle है, और एक और important बात जो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, and that is कि last 3 candles से we can see selling pressure from the high levels, right? From last 3 months we are checking that Nifty is feeling pressurized from the higher levels. And one more thing which you can see that previous month it was Nifty was unable to cross the January month candles low high, Feb month's candle high. So what we got here on the monthly chart, 3 things. What? अगर मैं यहाँ पे monthly charts को note करूं तो Nifty monthly chart showing first previous candle के lows breach नहीं हो रहे हैं. So previous candle lows, very important. Second, selling pressure from the highs. Selling pressure from the highs we can clearly see. इसका मतलब है lows breach नहीं हो रहे लेकिन selling pressure भी है. Third, previous month candle was indecisive, right? अगर हम बात करें तो indecisive candle है. तो अभी इन 3 चीजों को क्लब करके हमें क्या देखना है कि माइट इस मंथ के लिए हमारा प्रीवियस मंथ का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 14,250. वन थिंग. सेकंड, अगर ये ऊपर जाता भी है दैट अगेन वी माइट सी सम सेलिंग प्रेशर. एंड थर्ड, अगर ये डोजी वर्क करता है तो वी माइट थिंक कि ये जो शॉर्ट टर्म का हाई है दैट इज ऑलरेडी प्लेस्ड. ऑलराइट, 3 थिंग्स आर कंफर्म. So these 3 things we have to take down from the monthly chart. But if we go on the weekly chart, स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल अलग है. वो स्टोरी अलग कैसे है? जैसे आपने मंथली चार्ट्स पे देखा था कि हाईज ब्रीच नहीं, लोज ब्रीच नहीं हो रहे थे. वीकली चार्ट्स पे इफ यू कैन सी लास्ट 5 वीक से हम लोग के हाईज ब्रीच नहीं हो रहे. 1 2 3 4 5, राइट? लास्ट 5 वीक से हाईज नहीं ब्रीच हो रहे हैं. एंड मंथली चार्ट्स पे लास्ट सो मेनी मंथ से लोज ब्रीच नहीं हो रहे थे. तो इनडिसाइसिवनेस आपको साफ साफ दिख रही है. थर्ड, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज इन कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फेज, राइट?
इतना क्लियर कट अप मूव आने के बाद वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज नाउ इन कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज, कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फेज का क्या मतलब हुआ गाइस? आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आप यहाँ पे क्लियर कट समझ सकते हैं कि निफ्टी में अभी भी प्रेशर कंटिन्यू है, राइट? सो अगर हम लास्ट 3 वीक से देखें तो 14,900 इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस which we can see on the weekly charts, and 14,250 is the support which we can see on the monthly charts. monthly charts के support नहीं ब्रीच हो रहे हैं, weekly charts के highs नहीं ब्रीच हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अप है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रेंज बाउंड टू नेगेटिव है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी हमें कुछ ना कुछ निफ्टी में बड़ा देखने के लिए मिल सकता है आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ सो मेनी वीक्स। पहली चीज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये नेगेटिव टू रेंज बाउंड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है एंड 14,250 नीचे में निफ्टी ब्रेक करता है, देन ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट देयर कुड बी अ मोर सेलिंग प्रेशर। लेकिन अगर निफ्टी वापस से एक हाइस की तरफ जाता है, जो आज मैंने अपने ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट पे भी पोस्ट किया था, दैट इज कि अगर निफ्टी 15,300 की तरफ जाता है, देन ऑफ कोर्स वी हैव वन लेवल ऑफ 15,336। ये लेवल आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मंथली चार्ट्स पे वी आर चेकिंग की एक सेलिंग प्रेशर है फ्रॉम द हाई लेवल्स, और वो सेलिंग प्रेशर फिर से हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर निफ्टी 15,300 की तरफ जाता है, राइट? अच्छा, अब एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि व्हाट इफ की निफ्टी 14,250 ब्रीच करता है। निफ्टी अगर 14,250 ब्रीच करता है, देन ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट होगा, प्लस पॉइंट होगा, जहां पे हम निफ्टी को सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। सेलिंग की तरफ कहां के लिए? फॉर द लेवल ऑफ 13,800, राइट? ये 13,800 लेवल्स आपको ध्यान रखना है अपने पास अगर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है। This is all about if we checked what we checked on monthly and the weekly chart. But if we talk about the daily time frame chart, this is the daily time frame chart. इधर पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है गाइस, वो आपका पॉइंट है कि यहाँ पे structure is already turned negative. Structure has already turned negative. We can see downside, fail to cross upside, downside, and now again one upside, and we can see again one downside if it crossed the level of 14,250, राइट? तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड नेगेटिव है। अगर हम मंथली चार्ट्स की बात करते हैं तो सेलिंग प्रेशर इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द हाइज दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 15,300 एक रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकता है, जहां से फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। बट ओवरऑल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वाइल्ड मूव इन निफ्टी दिस मंथ, एंड क्योंकि वो मंथ का जो इनडिसाइसिव कैंडल है प्रीवियस मंथ का, मार्च मंथ का, वो आपके लिए एक वाइटल रोल प्ले करेगा, जहां पे आपको ये चीज समझनी होगी कि निफ्टी अब वो इतनी इजी मूव्स नहीं देने वाला है जितना आपको उसने फ्रॉम दी निफ्टी ने जो आपको मूव दिया है फ्रॉम लास्ट मार्च 2020 टिल नाउ, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी फ्रॉम हेयर ऑन। आपको वो मूव्स नहीं मिलेंगे, और जो मूव्स मिलेंगे दैट विल बी वेरी वाइल्ड। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी केयरफुल while trading निफ्टी। अगर आपको कुछ करना है then you can of course go ahead and do some stock specific trades which we will discuss very soon. But if you remember this connecting the dots process, connecting the dots जो मेरा अपना खुद का एक प्रोग्राम है, वो connecting the dots process है। अगर आप ये पूरा थ्योरी समझ पाए, आई एम डैम श्योर आपके लिए निफ्टी ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो गाइज, दिस वॉज द स्मॉल एनालिसिस निफ्टी के ऊपर, जो 100% आपको बहुत हेल्प करने वाला है निफ्टी को आने वाले वीक्स में ट्रेड करने के लिए। बट आई विल कीप पोस्टिंग माई वीडियोज ऑन निफ्टी रेगुलरली, सो दैट आपका ये जो पूरा प्रोसेस है बीच में कहीं छूट ना जाए और आप इसमें प्रॉपर लर्निंग करते रहें। सो गाइज, टेक केयर टिल देन, till our next video, and I hope you like this video, and if so, then please do not forget to like our video. See you soon guys. Thank you and namaste.